Trump-Xi meeting, US President says rare earth deal and tariff reduction agreed in crunch trade talks. Donald Trump has described the crucial trade talks with the Chinese president in South Korea as amazing, saying the dispute over the supply of rare earth had been settled and that he would visit China in April. अब ये कह रहा है कि यार बड़ी अमेजिंग टॉक्स थी, बड़ी अमेजिंग टॉक्स थी, मजा आ गया शी जिनपिंग से बात करके। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हासिल करना चाहता था वो डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल कर दिया। और किस लिए? रेयर अर्थ। अरे भाई, चाइना रेयर अर्थ तो पहले भी तुम्हें दे रहा था। ये पहले रेयर अर्थ कहां से आ रहे थे अमेरिका में यार? इट वॉज चाइना दैट वॉज गिविंग 90% ऑफ रेयर अर्थ इन दिस वर्ल्ड इज प्रोसेस्ड बाय चाइना, 60% इज फाउंड इन चाइना। सो व्हाट हैपेंड? इट वॉज चाइना दैट वॉज गिविंग रेयर अर्थ। इसने शुरुआत करी, चाइना ने रेयर अर्थ रोकी, इसने जाके बोला कि नहीं 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 साहब ठीक है, हम लोग ठीक कर लेते हैं। चाइना ने बोला वापस, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। जनवरी 20 के बाद जो ट्रंप ने ड्रामे करे हैं, जब से ये बैठा है कुर्सी पे विराजमान हुआ है, वापस ये जनवरी 20 पे चले गए। फर्स्ट पॉइंट रेयर अर्थ का। अब देखिए साहब, Xi Jinping has not commented on Thursday's discussions but noted that the economic and trade teams from both countries had reached a basic consensus on addressing our respective major concerns during the recent talks in Kuala Lumpur. According to Chinese state media, they had provided the necessary conditions for their meeting on Thursday, he added. अब देखो साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अमेजिंग। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है अमेजिंग, मजा आ गया, फैंटास्टिक, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ये सारे के सारे वर्ड्स यूज करता है डोनाल्ड ट्रंप। आपने कभी चाइनीज को देखा है शब्द यूज करते हुए? चाइनीज क्या कह रहे हैं? रीच्ड अ बेसिक कंसेंसस ऑन एड्रेसिंग अ रिस्पेक्टिव मेजर कंसर्न। सिंपल, बड़ा सरकारी सा गुनगुना सा बयान चाइना ने दे दिया। यानी कि सेम चीज है। बात किसके बीच में हुई? डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। डोनाल्ड ट्रंप इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई इसने दुनिया फतेह कर ली, इसने दुनिया फतेह कर ली, यह महाराजा धीराज बन गया। चाइना कह रहा हाँ ठीक है, बेसिक कंसेंसस एंड अंडरस्टैंडिंग वी हैव रीच्ड। कहानी खत्म। Likening the US-China relationship to an ocean-going vessel, she said the countries should stay on the right course and be partners and friends. ये भी एक किस्म का तंज कस रहा है वो कि भाई जैसे जहाज है, जहाज जब तक ठीक है, जब तक वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, should stay on the right course. जो रास्ता है, जो पाथ है, आप स्ट्रेट रास्ते पे जाइए and be partners and friends. She said that he and Trump don't always see eye to eye with each other, adding that it was normal for world's two biggest economies to have frictions now and then. कहानी खत्म। लेकिन आप ये देखिए जिस तरीके से बयान चाइना दे रहा है और जिस तरीके से बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि पता नहीं कौन सा झंडा कहां गाड़ के आ गया है। ये खबर हमने दोस्तों ली है रॉयटर्स से। Trump cuts China tariffs to 47% after amazing Xi meeting. Busan, South Korea, October 30. US President Donald Trump said on Thursday he had agreed to reduce tariffs on China to 47% in exchange of Beijing resuming US soybean purchases, keeping rare earth exports flowing and cracking down on the illicit trade of fentanyl. His remarks after face-to-face talks with Chinese President Xi Jinping in the South Korean city of Busan, their first since 2019, marked the finale of Trump's whirlwind Asia trip, on which he also touted trade breakthroughs with South Korea, Japan, and South Asian nations. Trump repeatedly talked up the prospect of reaching agreement with Xi since US negotiations on Sunday, since they had agreed to a framework with China that will avoid 100% US tariffs on Chinese goods and achieve a deferral of China's export curbs on rare earth, a sector it dominates. अब ये देखिए ना, लास्ट लाइन देखिए, but with both countries increasingly willing to play hardball over areas of economic and geopolitical competition, many questions remain about how long any trade détente may last. अब यार इशू क्या है? देखो, इशू ये है कि इसने बोला कि भैया हम 47% पे ले आते हैं, 100% टैरिफ इसने और बढ़ा दिया था। ये कह रहे हैं कि हम 100% को हटाओ, 47 पे। अब पहले कितना था? ये झगड़ा जो ट्रंप ने शुरू करा है, चाइना ने शुरू नहीं करा। अच्छा, चाइना भी बदमाश है दोस्तों, आप ये मत समझना कि चाइना दूध का धुला है। चाइना बदमाश है, राइट? चाइना बदमाश है। और इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है, ये चाइना जो बातें करता है ना, लंबी लंबी छोड़ता है चाइना कि there should be consensus and multipolarity और multilateralism, ये कुछ भी नहीं है। इन दोनों की लड़ाई है वर्चस्व की, ठीक है? चाइनीज थोड़े पुराने खिलाड़ी हैं, सिविलाइजेशनल स्टेट है चाइना, 5000 साल पुराना इतिहास है, अमेरिका का नया नया बच्चा है, सबसे तगड़ा बच्चा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इट्स अ न्यू कंट्री रिलेटिवली, राइट?
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बार बार कह रहा है 47%, हमने 100% जो टैरिफ थे, 100% टैरिफ जो थे हमने हटा दिए। हटा तो तुमने पहले भी दिए थे यार, तुमने लगाए क्यों वो? जब तुमने 100% टैरिफ लगाए तो तुम क्या ऐसा हासिल करना चाहते थे जो पहले तुम्हारे पास नहीं था? और ये ड्रामा करने के बाद तुमने ऐसा क्या हासिल कर लिया जो तुम्हारे पास पहले नहीं था? समझ रहे हैं? एक केतली है जिसमें उबलता हुआ पानी है, एक इंसान आपका हाथ पकड़ के उबलते हुए पानी में डालता है, आप चीखते हैं, चीखने के बाद वो इंसान आपका हाथ उबलते हुए पानी से निकाल देता है और फिर आप पे एहसान जताता है कि देखो मैंने तुम्हें उबलते हुए पानी से अबे हाथ तो पहले बाहर ही था। यही काम ट्रंप कर रहा है, ये देखिए सब। US China tariff cuts, rare earth deal, soybean purchases. 5 key announcements from Trump-Xi meeting in South Korea. Number 1, tariff cuts. अब आप आ जाइए बेसिक्स पे कि हुआ क्या क्या, 4-5 पॉइंट है यहां पे। ठीक है दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं कि अचीव इन्होंने कुछ नहीं करा, जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था उसको कम कर दिया और वहीं पे लौट के बुद्धू घर को आए। Trump agreed to cut fentanyl-related tariffs on China from 20% to 10% effective immediately. Aboard Air Force One jet after Xi talks, Trump said tariffs on China are dropping from 57% to 47% after talks on fentanyl curbs with Xi Jinping. Ukraine war, Trump said that he and Xi Jinping had agreed to work together on the issue of Ukraine. अब देखो साहब, Trump agreed to cut fentanyl-related tariffs. Fentanyl एक ड्रग है जिसमें यूएस में मौत होती है, ये कह रहे हैं कि चाइना उसका रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अब इसने 20% से 10% काट दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि 20% जो टैरिफ लगाए थे उसको मैंने 10% कर दिया, जो फेंटेनल रिलेटेड टैरिफ थे। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, फेंटेनल रिलेटेड। चाइना ने अब ये देखिए साहब, ड्रॉपिंग फ्रॉम 57% टू 47%। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या चाइना ने यह बात मान ली कि वो फेंटेनल भेज रहा था यूएस में? चाइना ने साइन करके दे दिया कि कल से हम नहीं भेजेंगे जो हम भेज रहे थे। जो मौत का सामान अकॉर्डिंग टू अमेरिका, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, जो मौत का सामान चाइना भेज रहा था, वो मौत का सामान चाइना बंद कर देगा? चाइना ने ऐसा कुछ रिटर्न में कमिटमेंट दिया? यानी कि चाइना मानता है कि वो ड्रग्स भेजता है अमेरिका के अंदर, या उसके रॉ मटेरियल भेजता है, जो भी भेजता है। ट्रंप said that he and Xi Jinping had agreed to work together on the issue of Ukraine. Agreed to work together क्या? What is this agreed to work together? Soybean purchase. Trump said large amounts of soybean will be purchased immediately. Beijing will start buying the oilseed immediately, Trump said, without providing any details on volumes. एक बात बताओ, ये सोयाबीन डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, सोयाबीन तो खरीद ही रहा था चाइना। सोयाबीन तो चाइना खरीद रहा था। $12 अरब से लेकर तकरीबन $15-16 अरब का हर साल सोयाबीन चाइना खरीदता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। खरीदता ही था, वो तो खरीद रहा था, इतने सालों से खरीद रहा था। और almost 50 to 60% of American soybean was bought by China. सबसे बड़ा ग्राहक चाइना था। मुझे एक छोटी सी बात आप बताइए, ये जो कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोयाबीन्स विल बी परचेस्ड इमीडिएटली, अब ये इसको वही चीज है ना कि गरम केतली में हाथ डाल दिया, फिर निकाल दिया, बोला देख बेटा मैंने तेरे को बचा दिया। ये तो खरीद ही रहा था चाइना। तुमने चाइना को परेशान करा, चाइना ने बोला हम तुमसे खरीदते नहीं, अब इसने बोला सॉरी, चाइना ने बोला ठीक है खरीद लेते हैं। ये जीत कैसे हो गई तुम्हारी यार? ये देखिए रेयर अर्थ डील। Trump said that he clinched a deal with China, Xi, on rare earth, and that the Chinese rare earth deal is 1 year extendable. He said China agreed to keep rare earth exports flowing. All the rare earth issues has been settled. Settled तो पहले भी थे भाई साहब, पाजी settled तो पहले भी थे। आपके पास जो रेयर अर्थ आ रहा था वो कहां से आ रहा था? पहले जो पहले अमेरिका में रेयर अर्थ आ रहा था वो कहां, मंगोलिया से आ रहा था, या टंजानिया से आ रहा था, या अजरबैजान से आ रहा था? कहां से आ रहा था? वो तो चाइना से आ रहा था। चाइना ने आपके रेयर अर्थ क्यों रोके? क्योंकि आपने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। अब आपने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, फिर आपने चाइना के ऊपर से टैरिफ हटा दिया, उसने रेयर अर्थ के ऊपर जो उसने कर्ब्स लगाए थे वो हटा दिए। अब ये कौन सी विक्ट्री हो गई? किसी का पैर तोड़ो, फिर उसको अस्पताल ले जाओ, जब वो ठीक हो जाए बोला देख बेटा मैंने तेरे का इलाज करवा दिया तेरा, मैंने। यही काम कर रहा है। रेयर अर्थ तो चाइना से मिल ही रहे थे, सोयाबीन तो चाइना खरीद ही रहा था। इट्स बैक टू स्क्वायर वन। ट्रंप प्लान्स चाइना ट्रिप। अब ये ठीक है कि Trump described the meeting with China's leader Xi Jinping as great success. He also shared his plans to head to China in April for new talks. अब देखते हैं वहां पे क्या होता है। I honestly speaking, मैं आपको साफ बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इसने अचीव क्या करा है। What has this man achieved? मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। चाइना के साथ बात करके इसने अचीव क्या करा? I don't know.
यह खबर है रॉयटर्स की दोस्तों, बहुत अहम खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिला और ताइवान जो है, ताइवान की सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिफेंस की गारंटी ले रखी है अमेरिका बहादुर ने। कल परसों मैंने बात बोली थी, आपको याद होगी भाई। ताइवान ये कह रहा है कि हमें कोई फिक्र नहीं है, इन दोनों के बीच में मीटिंग हो जाए, वी डोंट केयर। हमें पता है कि हमारी जो अमेरिका के साथ यारी दोस्ती है वो बरकरार है। ठीक है, ऐसा ताइवान का मानना है। यहां पे चाइना सेज इट एब्सोल्युटली विल नॉट रूल आउट यूज ऑफ फोर्स ओवर ताइवान। पेन केंगिन, a spokesperson for China's Taiwan Affairs Office, told a regular news conference in Beijing that peaceful reunification under the one country, two systems model is the fundamental approach to resolving the Taiwan issue. We are willing to create ample space for peaceful reunification and will spare no effort to pursue this prospect with the utmost sincerity. However, we absolutely will not renounce the use of force and reserve the option to take all necessary measures. China, which views democratically governed Taiwan as its own territory, has never renounced use of force to reunify with the island. Speaking earlier on Wednesday in Taipei, Taiwan National Security Bureau Director General Tsai Ming-yen said China's Patriots model was what Beijing used in Hong Kong and Macau and had no market in Taiwan. The aim is to belittle Taiwan's international standing and Hong Kongify and Macaoify Taiwan. ये देखिए साहब, Hong Kongify and Macaoify Taiwan to achieve the political objective of eliminating Taiwan's sovereignty, which is Chinese Communist Party seeks to do. अच्छा, ये ताइवान स्पीकिंग ऑन वेडनेसडे इन ताइपे, ताइवान नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर, ये जो है ना, अब ये अपनी स्टोरी बता रहा है कि चाइना क्या कर रहा है। पहले चाइना ने अपनी स्टोरी बताई, अब ये अपनी स्टोरी बता रहा है। नेट नेट क्या है दोस्तों? नेट नेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है कि भाई शी जिनपिंग ने मुझसे वादा करा है कि जब तक आप प्रेसिडेंट बने रहेंगे, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना रहेगा, ठीक है, तब तक चाइना ताइवान पे हमला नहीं करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। और यहां पे चाइनीज कुछ और बोल रहे हैं। चाइना में वो वाला मीडिया नहीं है कि फॉक्स न्यूज कुछ बोल रहा है, CNN कुछ बोल रहा है, और यहां पे जैसे इंडिया में 25 मीडिया हाउस 25 कुछ और बोल रहे हैं। चाइना में आपने देखा, पुराने जमाने में एक भोंपू हुआ करता था, कुत्ता था उसके सामने, और वहां पे वो एक आई डोंट नो, स्पीकर और मेगाफोन और व्हाटएवर यू कॉल इट, ग्रामोफोन टाइप का होता था, और HMV लिखा रहता था, हिज मास्टर्स वॉइस। ठीक है ना, HMV, हिज मास्टर्स वॉइस। वही है भाई हिज मास्टर्स वॉइस चाइना में। जो शी जिनपिंग चाहता है, मीडिया वही बोलता है। देयर इज नो कॉन्ट्री मीडिया इन चाइना। ये शी जिनपिंग के वर्ड्स हैं। और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या चूरन खिला के आया है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक, वो कह रहे हैं देखो यार, हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा, लेकिन आप ये मत समझना कि अगर ताइवान को मिलाना है चीन से तो लड़ाई झगड़ा हमने बिल्कुल ही त्याग दिया और हम सिर्फ शांति की बात कर रहे हैं। शांति से हम पहल कर रहे हैं। झगड़ा हो सकता है, वॉर हो सकता है, ये चाइना ने साफ साफ बोल दिया है। यह खबर दोस्तों रॉयटर्स की है। रशिया टेस्ट्स न्यूक्लियर केपेबल पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो, पुतिन सेज। हाल फिलहाल में ही रशिया ने क्रूज मिसाइल अपनी लॉन्च करी थी, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। अब उसने बोला है कि न्यूक्लियर केपेबल पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो लॉन्च करा है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन said on Wednesday that Russia had successfully tested a Poseidon nuclear powered super torpedo that military analysts say is capable of devastating coastal regions by triggering vast radioactive ocean swells. There are few confirmed details about Poseidon, named after the ancient Greek god of the sea, but it is essentially a nuclear capable cross between a torpedo and a drone. अब देखिए साहब, ये क्या स्टोरी है, क्यों कर रहा है? दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन को एक बात पता है, वाज़ेह तौर पे उसको पता है कि अगर चीन और अमेरिका के हालात बेहतर हो गए तो अगला प्रेशर रशिया पे आएगा। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था साफ तौर से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि यूक्रेन वाले मामले में हम चाइना की मदद लेंगे, और चाइना ने बोला है कि हम आपकी मदद करेंगे। क्या यह हो सकता है कि चाइना रशिया के ऊपर हल्का सा प्रेशर डालेगा कि भाई जरा देख ले यार, बहुत प्रेशर आ रहा है, देख ले? कैसा हो सकता है? क्योंकि चाइना हर समय चाइना का फायदा देखेगा, और ये गलत नहीं है। भारत भी भारत का फायदा देखेगा, रशिया भी रशिया का देखेगा, अमेरिका भी अमेरिका का फायदा देखेगा। एक दूसरे का फायदा क्यों देखें? अगर ऐसा होता है फिर क्या? दिस इज व्लादिमीर पुतिन। अब ये देखिए, 72 घंटे के अंदर ये दूसरा टेस्ट हो गया। पहले उस क्रूज मिसाइल का टेस्ट हो गया, जो कह रहे थे कि साहब 14-16 पता नहीं कितने हजार किलोमीटर तक जा सकती है, न्यूक्लियर पावर्ड है, राइट? न्यूक्लियर केपेबल एंड न्यूक्लियर पावर्ड। सेम विद दिस, न्यूक्लियर केपेबल एंड न्यूक्लियर पावर्ड। ये मिसाइल है, कह रहा साहब ये मिसाइल हम लोग इसमें लॉन्च कर सकते हैं। ये देखिए, रेंज ऑफ 10,000 किलोमीटर एंड कैन ट्रैवल एट अबाउट 185 किलोमीटर पर आवर, 185 किलोमीटर प्रति घंटे पानी के अंदर ये जाती है। और पोसाइडन, नोन in NATO as Canyon, is 20 meters long, 1.8 meters in diameter and weighs 100 टन की है यार, 100 टन का है पूरा मामला ये।
This is an underwater torpedo cum drone. For Trump, who has called Russia a paper tiger for failing to swiftly subdue Ukraine, the message is that Russia remains a global military competitor. इसके अलावा एक और मैसेज है ना कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है. अगर तुम ये सोचते हो कि यूक्रेन के मामले में आर्म ट्विस्टिंग कर लोगे रशिया की, ये कभी कामयाब नहीं होगा. और यहां पे दोस्तों ट्रंप ने भी एक हल्का फुल्का सा जवाब देने की कोशिश करी है. फ्रांस 24, यह जवाब सबको है, राइट? Trump orders immediate resumption of US nuclear weapons testing. US President Donald Trump ahead of his meeting with Chinese President Xi Jinping. ये मीटिंग से पहले का खेल है ये. Said he has instructed the Department of Defense to immediately resume testing nuclear weapons on an equal basis with other nuclear powers. Basically ये है कि पिछली बार इन्होंने वेपन टेस्ट करा था 1992 में. He said कि अगर कोई और देश करेगा हम भी करेंगे. ये बेसिक बात है इसकी. The United States has more nuclear weapons than any other country. This was accomplished, including a complete update and renovation of existing weapons during my first term in office. Because of the tremendous destructive power, I hated to do it, but had no choice. Russia is second and China is a distant third, but will be even within 5 years because of other countries' testing programs. I have instructed the Department of War to start testing our nuclear weapons on an equal basis. That process will begin immediately. Thank you for your attention. Blah, blah, blah. Basically क्या है कि ये अपना रेटोरिक बढ़ा रहा है. क्या होता है कि जब डील होती है दोस्तों, जब डील के लिए लोग बैठते हैं तो ये देखते हैं कि भाई किसकी बड़ी लाठी है, किसके पास ज्यादा लठैत खड़े हैं, कौन बड़ा बाहुबली है. दोस्तों जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तब आप इस किस्म का फ्लेक्स करते हैं. और ये किसके लिए? इंडिया के लिए तो है नहीं है. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर चाइना एंड फॉर रशिया. मैं आपको बता रहा हूं पूरी टॉक्स है ना, आप देख लेना 2025-2026 का, ये अगले 14 महीने, जब ये लड़ाई यूक्रेन वाली खत्म होगी, राइट, तब आप ये देख लेना कि इट विल एंड टू द बेनिफिट ऑफ चाइना. मैं ये नहीं कह सकता कि रूस का बेनिफिट होगा, नहीं होगा. मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका या यूक्रेन का बेनिफिट होगा, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूं कि चाइना का बेनिफिट होगा इसमें. आप देख लीजिएगा जिस तरीके से उसने चूड़ियां कस रखी हैं, बिकॉज दिस मैन, दिस गाय इज टोटली अनरिलायबल. बस America is more powerful than China. America has got more weapons than China. America has got a better military than China. America has got more foreign exchange reserves than China. Right? हर किस्म से अमेरिका चाइना से, हर लिहाज से अमेरिका जो है चाइना से मीलों आगे है. लेकिन यहां पे लीडरशिप जहां पे फनी टाइप की होती है ना, फिर दोस्तों लीडरशिप मेक्स ऑल द डिफरेंस. आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों. पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.